Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will start the remaining portion of the obstetrics and the gynae MCQs, which is the PPH. अब PPH क्या होता है after the delivery अगर hemorrhage हो जाता है, it's a PPH. Okay. So during the C-section, PPH with a failed manual compression and oxytocin virtually. अब C-section के दौरान ही पेशेंट को PPH हो गया और वो manual compression भी हमने कर दिया, oxytocin दे दिया, फिर भी वो fail हो गया. Cesarean में आप सबसे पहले balloon करते हो, अगर fail हो जाता है तो artery embolization करते हो. अगर तो hemodynamically stable है, अगर unstable है तो लेप्रोटमी और artery ligation करते हैं. और अगर vaginal delivery है तो फिर vector balloon, अगर वो fail हो जाता है तो artery embolization, अगर hemodynamically unstable है तो फिर लेप्रोटमी. Vaginal के अंदर हम करते हैं vector balloon और जो cesarean है उसके अंदर balloon करते हैं, ठीक है, और फिर artery embolization. During the vaginal delivery PPH वही बात आ गई, अब इसमें vaginal delivery तो क्या आएगा, vector balloon. Okay. During the vaginal delivery PPH with a failed manual compression and oxytocin intubation is hemodynamically unstable. What should you do? अब failed compression हो गया, hemodynamically unstable है. Unstable होगा तो क्या करते हैं हम? आर्टरी लाइगेशन. और अगर एक सेकंड, हाँ ठीक है, और अगर आर्टरी जब अगर तो हेमोडायनामिकली स्टेबल होगा तो हम कहते हैं आर्टरी एम्बोलाइजेशन, और अगर अनस्टेबल होता है तो लाइगेशन और लेप्रोटमी. तो इसमें क्या होगा? अनस्टेबल है ना तो लाइगेशन होगी. Pregnant with a massive bleeding from the abruption of placenta, she is hypertensive, vitally unstable. What is the most appropriate thing to do? Say, abruption है placental, hypertensive हो गई है, vitally unstable है. बट सबसे पहले आप इसमें जो मल्टीडिसिप्लिनरी टीम होती है उसको इन्वॉल्व करते हो, ठीक है. 20 years old pregnant woman presented with the loss of the fetal moments, followed by the decrease during the output, difficulty breathing, labs में APTT prolonged है, fibrinogen low है, platelets low है. What is the diagnosis? अब loss of the fetal moment के साथ आई है 20 weeks पर. During the output कम है, difficulty in the breathing. जब भी breathing में difficulty आई और उसका APTT भी prolonged है, ये सब इसका मतलब बॉडी में कहीं ना कोई clot बन रहा है, और clot इस टाइम पर अगर difficulty in the breathing तो mostly amniotic fluid embolism होता है, amniotic fluid की वजह से. Amniotic fluid is a rare, unpredictable, unpreventable, devastating obstetric emergency signed by the triad hemodynamic compromise है, respiratory compromise है और DIC हो सकता है. अगर तो कोई respiratory symptom नहीं आ रही तो DIC, और अगर respiratory DIC है तो amniotic fluid embolism. Pregnant in the labor, she takes a heparin. Post delivery she has the heavy bleeding, what to give. अब इसमें देखो heparin ले रही है, in post delivery के बाद उसको हाई ब्लीडिंग हो रही है, हैवी, what to give. अब इसमें क्या देते हैं? जब भी आपने हेपारिन को न्यूट्रलाइज करना होता है तो प्रोटामिन देते हैं जो इसके इफेक्ट को रिवर्स कर देता है. परसेंटेज ऑफ द मैटरनल डेथ वर्ल्ड वाइड ड्यू टू द पीपीएच. इसमें क्या होगा सिस्टम इसके अकॉर्डिंग जो है मैटरनल डेथ के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा लाइक 20% तक होते हैं, ठीक है, पीपीएच के बाद. अ पेशेंट विद पोस्टमार्टम हैमरेज वाज रिससिटेटेड, दे फाउंड देयर इज अ परसिस्टेंट ब्लीडिंग एट द स्वेयर पंक्चर साइट, बट इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप. अब इसमें अगर तो फॉर एग्जांपल डीआईसी की तरफ ये जा रहा है तो हम उसको रिवर्स करते हैं ना. अगर आपको लग रहा है कि डीआईसी के चांसेस तो फिर आप एफएफपी दोगे साथ में प्रेसिपिटेट देते हो, ठीक है. अब इसमें उन्होंने क्या कहा, रिससिटेट दे फाउंड परसिस्टेंट ब्लीडिंग पंक्चर साइट, तो फिर आपने कोएगुलोपैथी को रिवर्स करना है. वो कैसे करते हो? एफएफपी और प्रेसिपिटेट देके. 28-year-old preemie gravida patient delivered her baby, developed the bleeding requiring 1 liter of the crystalloid, 4 units of the blood transfusion despite all the medical measures. Patient remained hypertensive, HB कम है, platelets 16 है, what you will administer in this case. अब इसमें अब ये वही MCQ है. Preemie gravida है, bleeding required for the like 1 liter of the crystalloid transfusion despite all the medical patient remain high. इसके बावजूद भी अगर पेशेंट आपने crystalloid देंगे तो फिर आप क्या देते हो? Cryoprecipitate. अब इसमें की एलिमेंट्स होते हैं, आपने ऑक्सीजनेशन परफ्यूजन ब्लड प्रोडक्ट्स से सारी देनी है, उससे बेटर नहीं हो रहा, सब कुछ आप मेंटेन रखो. उसके बाद आप क्या देते हो? ब्लड प्रोडक्ट्स. हाई ब्लीडिंग है तो 6 units of the RBCs, FFPs, ठीक है, और cryoprecipitate देंगे. सबसे पहले देखो RBCs आ गए, फिर FFPs है, फिर cryoprecipitate है, देन ट्रांसफ्यूजन. ओके. इसमें देन अगर सीरियस ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, प्लेटलेट्स 50 से भी कम है, देन यू विल मूव टुवर्ड्स द प्लेटलेट ट्रांसफर. वुमेन इन द डिलीवरी ब्लीडिंग नॉट स्टॉप, शी वांट टू कंसीव इन द फ्यूचर, व्हिच स्ट्रक्चर यू शुड लाइगेट. अब जब भी इस तरह ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही एंड शी वांट टू कंसीव इन द फ्यूचर, व्हिच सबसे पहले आपको जो स्ट्रक्चर लाइगेट करना होता है इंटरनल एलिक आर्टरी होती है. कॉज ऑफ द पीपीएच और ऑक्सीटोसिन व्हाइल यू मैनेज द केस, यू नॉट स्मॉल ब्लीडिंग, यू एग्जामिन हर बट ब्लीडिंग प्रिवेंट्स यू फ्रॉम डिटरमाइनिंग द एग्जैक्ट सोर्स ऑफ द ब्लीडिंग. आपको नहीं पता चला, आप कॉल फॉर हेल्प करोगे. फीमेल आफ्टर द वेजाइनल डिलीवरी, आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा, शी ब्लीड हैवी अमाउंट्स, व्हाट यू विल डू. इसमें आप क्या करते हो? जल्दी से ऑब्वियस अगर उस टाइम पे आपने पहले इसलिए कहते हैं कि पहले क्रॉस मैच करवा के, लेकिन अगर नहीं करवाया होगा आप जल्दी से क्रॉस मैच करवा कर फिर उसके लिए ब्लड अरेंज करेंगे, ठीक है. सबसे पहले हम क्रॉस मैच कराएंगे. Patient just gave the birth, started to bleed heavily, what to do next? Call for the help and ensure the cross matching. The next one is a patient post-delivery massage is done. Oxytocin, she was bleeding on inspection. She found it due to the laceration 2 cm. You tried the suture, but it's not possible due to the profuse bleeding from the, which is the most appropriate step. अब इसमें देखो आपने मसाज भी कर लिया, oxytocin भी दे दिया, फिर भी bleed हो रही है, आपको नजर आया कि इसके ऊपर laceration और आपने suture भी लगाई, लेकिन फिर भी profuse bleeding आ रही है, तो आप क्या करोगे? आपने देखना है कि कहाँ से आ रही है, एक्सप्लोर करोगे यूट्रस को, ठीक है, और उसको अच्छे से एग्जामिन करना है. Patient delivered without episiotomy, placenta was checked and all parts were delivered. The patient had a gush of the blood coming. What is your next step? अब इसमें without episiotomy, placenta was checked, all parts delivered हो गए, patient फिर भी उसका gush of the blood आ रहा है, तो आप देखोगे कि ये patient जो PPH की तरफ नहीं जा रहा, यूट्राइन टोनी रिटॉन, जो PPH की 4 P's याद करवाए थे ना, ट्रॉमा, टोन, थ्रोम्बन, ठीक है, और एटोनी and tissue. Female had the vaginal delivery, removed placenta completely. Shortly after, bleed profusely. What is the next step in the management? Vaginal delivery, placenta complete, remove bleed profusely. So आप क्या करोगे? Uterine contraction को आपने देखना है, टॉनिक नहीं होगी. Preemie gravida woman just delivered spontaneously. Baby is delivered complete and intact. Massaging of the uterine is performed along with the 20 units of oxytocin, the 1000 of collected finger. Fast step inspection, endotracheally, second degree laceration, the left vaginal wall में. Suturing is difficult because of the bleeding from above the site of the laceration of soft bogey uterine fundus है. Blood pressure उसका 160/92 है, heart rate 130 per minute है. Which of the following is the best step in the management? अब इसमें दोबारा से इसको एक बार देख लेते हैं. एक तो वो स्पॉन्टेनियस बेबी डिलीवर हो गया, मसाजिंग भी आपने कर दिया, रिंगर भी दे दिया, इंस्पेक्शन भी कर लिया, लेकिन सेकंड डिग्री लेसरेशन थी, ठीक है. दूसरा फिर आपने देखा सुचरिंग इज डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द ब्लीडिंग फ्रॉम, क्योंकि उसको पेन हो रही है ना. फिर ऑफ द फॉलोइंग इसमें आप क्या दोगे? प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है. अब इसमें पीपीएच को कैसे मैनेज करते हैं? आप ऑक्सीटोसिन देते हो, ठीक है. उसके बाद मिथाइल ऑक्सीटोसिन देंगे, मिथाइल गुनोबिन देंगे जो एल्बुमिट्राइन आ जाता है, फिर कार्बाप्रोस देंगे और दूसरा मिसोप्रोस्टोल देते हैं, ठीक है. अब जो कार्बाप्रोस होता है वो आप याद रखें कि जो एल्बुमिट्राइन होता है ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है प्रेक्लम्शिया प्रेवेंशन में, और कार्बाप्रोस जो है अस्थमा में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, और मिसोप्रोस्टोल जो है वो आप रेक्टली को दे सकते हो, ठीक है. इन केस ऑफ द ऑनगोइंग हैमरेज एंड द पोर यूट्राइन डिस्पोज, मल्टीपल यूट्रोटोनिक एजेंट शुड बी यूज्ड इन द रैपिड सक्सेशन. लेडी प्रेजेंटिंग विद vaginal bleeding with a fever 15 days after the C-section, most probable diagnosis क्या होगा? vaginal bleeding और उसके बाद उसको फीवर हुआ आफ्टर द C-section, तो एंडोमेट्राइटिस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है. रिटेन प्रोडक्ट हो सकती है. दूसरा हिस्ट्री ऑफ द C-section, द फीवर. Highest rate successful drug used in the PPH is the oxytocin. Most common drug used to treat the PPH after the uterine atony is the oxytocin. Bleeding after the pour of the delivery. अब इसमें अगर 24 hour के अंदर है तो प्राइमरी PPH, और अगर more than 24 hour after delivery 12 weeks तक है तो उसमें भी 7 जो आता है उसके अंदर most common होती है, ठीक है. In the labor after the 10 minute of delivering the fetus, the placenta is still not delivered. She is started bleeding, but type of the PPH. अब इसमें after the 10 minute of the placenta अभी तक deliver नहीं हुआ, ठीक है. She started bleeding, but of type of the PPH is the 10 minutes है ना, तो primary PPH होगा. Patient had the PPH is non case of the asthma, but medication you can carbapenem भी हमने देखी है. Okay, patient had the PPH is non case of the hypertension, but medication you cannot give her is the. अब इसमें hypertensive है तो क्या नहीं दोगे? मिथाइल एल्बुमिन, okay.
PPH medication क्या होती है? ऑक्सीटोसिन मिक्स विद 500 डेक्सट्रोज 5 IV, ठीक है। द नेक्स्ट पोस्टपार्टम PPH which of the following is used to stop the bleeding is the misoprostol। इसमें बाकी भी दिए होते तो हम वो भी कर सकते थे। मोस्ट एक्यूरेट मेथड टू मेक श्योर फुल प्लेसेंटल सेपरेशन, मोस्ट एक्यूरेट मेथड टू मेक श्योर फुल प्लेसेंटल सेपरेशन इज द, कैसे करते हैं? मैनुअली रिमूव करेंगे उसे। आपने अल्ट्रासाउंड इंट्रा यूट्राइनल एग्जामिनेशन यूज्ड टू डायग्नोज रिटेन प्लेसेंटा टिश्यू, मैंने रिटेन प्लेसेंटा आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर उसको मैनुअल रिमूव करो। A young female the labor was normal but there was a difficulty delivering the placenta which complicated with the uterine invasion accompanied with the vaginal bleeding 1200 cc, which of the following is the source of her bleeding? नॉर्मल है लेबर, डिफिकल्टी इन delivering the placenta, complicated uterine invasion accompanied with the vaginal bleeding, which of the following is? अब क्या सोर्स हो सकता है? इसका मतलब है कि उसकी मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही ना, इसी वजह से तो जब वो उसको प्लेसेंटा बाहर निकालें वो यूट्रस की भी इन्वाजन हो गया। हमें इसमें बिकॉज़ वेजिटेटिव फंटस में नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग नॉर्मली एंड इन्वर्टेड एंड स्ट्रेच व्हिच exacerbate the bleeding। 30-year-old female gravid for 7 labor for the 7 hour deliver and then had the PPH, what is the reason? अब इसमें 30 ईयर है और फीमेल है, लेबर फॉर 7 hour deliver और फिर उसके बाद PPH, तो मोस्ट कॉमन क्या होती है कि इसमें मल्टीपैरिटी है ना। PPH के रिस्पेक्ट जो है वो क्या हो सकते हैं? यूट्राइन एटोनिक इशू है, HRT या आपकी ऑब्स्टेटिक्स में ओबेसिटी है, प्रीटर्म प्रेगनेंसी है, दूसरा इंजरी टू द बर्थ कैनाल हो सकती है, एब्नॉर्मल प्लेसेंटा हो सकती है, ठीक है। एब्नॉर्मलिटी ऑफ द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ट्रॉमा टिश्यू, वही चीजें दोबारा। प्रेग्नेंट ग्रेविड 2 पैरा 1+1 deliver after the 5 hours duration of the labor, the baby weight was 4600 after delivering the placenta she started to bleed heavily। प्लेसेंटा के डिलीवर होने के बाद स्टार्टेड ब्लीड हेवी, मोस्ट लाइकली कॉज क्या होगी? मोस्ट लाइकली कॉज क्या है? अब इसमें प्रोलॉन्ग लेबर, मल्टीपैरिटी, हिस्ट्री ऑफ द PPH एंड द मैक्रोसोमिक। बेबी वेट यहाँ पर मैंने कितना बताया? 4600, ठीक है। आफ्टर द 5 hours ऑफ द ड्यूरेशन शी स्टार्टेड, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ ब्लीडिंग? अब यहाँ पर मैक्रोसोमिक जो है वो कॉज हो सकती है। अब हमने यहाँ पर ऊपर भी दिखा था, 1 सेकंड, इसमें देखो रिस्पेक्टिव के अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि जो एटोनी होती है वो क्या क्यों होती है? तो प्रोलॉन्गेज ऑफ ऑक्सीटोसिन, मल्टीपल जेस्टेशन, मैक्रोसोमिक बेबी, पॉलीहाइड्रोमेनोस, फेब्रॉइड यूट्रस। एटोनी कब होगी? ओवर स्टेन, फेब्रॉइड यूट्रस, यूट्राइन इन्वाजन, ये सब हो सकते हैं, इन्वाजन, कॉर्ट्रैक्शन, फंडल इम्प्लांटेशन हो सकती है, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन एटोनी ही होती है, लेकिन एटोनी भी क्यों हो रही है यहाँ पर? बिकॉज ऑफ द मैक्रोसोमिक बेबी। यहाँ पर एटोनी नहीं लिखा हुआ, अगर होता तो हम उसी को देख लेते। Okay, so the 25-year-old female gravid to para 1, labor was 2 hours long, baby came out before she barely made it to the possible, baby weight was 3000, she started bleeding after the delivery of the placenta, which is the most likely cause। baby came out before she barely made it to the possible, baby weight 3000, she started after the delivery of the placenta, उसने bleeding start कर दिया, तो इसमें क्या हो सकता है? इसका precipitous labor। इसमें भी उन्होंने आई थिंक सो इधर 1 सेकंड, अब इसमें उन्होंने बताया कि लेबर जो थी वो 2 hours long थी, बेबी केम आउट बिफोर शी barely made it, आप देख सकते हो कि इसमें कितनी जल्दी जो है बदली हुई है, तो इससे हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटस लेबर, ये भी इसकी मोस्ट लाइकली कॉज होती है। ओके, 30-year-old gravid of 4 para 3 all SPD without complication, complaining of the labor pain, delivered normal vaginal delivery after the 16 hours of the labor, baby weight 3000 है, she developed the PPH, that is the most common cause क्या है? अब इसमें लेबर पेन है, delivered normal after the 16 hours, ठीक है, इसमें कितनी prolong हो गई है। Okay, the next one is the mother delivering the twins 2 hours ago, now having the bleeding, but is the most likely cause। अब इसमें most likely cause क्या होती है? अब इसमें तीनों T's बताया हुआ है ना, most common cause क्या थी? एटोनी। Female gravid deliver healthy baby with uneventful vaginal delivery. After the delivery of the placenta, she is found to have the lowest 1000 cc of the blood. She looks well stable and her uterus is firm. But is the most likely cause for the bleeding is the atony। Female forceps was used in the delivery, resulting in the laceration in the cervix and the vagina, and the PPH was the reason for the PPH। अब इसमें laceration आ गई है, ठीक है, in the cervix and the vagina and PPH forceps यूज किए थे। अब इसमें अगर ऊपर आप देखो, हाँ, यूट्राइन एटोनी जो यूट्रस स्पेम नाउ दे डिड नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द यूट्रस कंडीशन व्हिच इज रेगुलरपैथी और ये सारी नॉइस, इसमें कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर आपको बता दिया कि फोर्सेप है तो रह सकता है, ठीक है। लेसेरेशन भी है तो इसमें मोस्टली जो है फोर्सेप जब यूज कर रहे होते हैं तो जेनिटल ट्रैक्ट जो है वो उसका ट्रॉमा हो जाता है, उस पर कोई ना कोई लेसेरेशन बन जाती है। 37-year-old female gravid per 7 36 week of the gestation had a previous recurrent postpartum hemorrhage that required the blood transfusion, she is medically free but is the most appropriate preventable measure in the delivery। इसमें 36 weeks है, previous recurrent PPH है, अब से required the blood transfusion, she is medically free but is the most, अब क्या करोगे? प्रिवेंटेबल मेजर क्या करनी होती है हमें? हम इसमें जो भी उस टाइम पे जो थर्ड स्टेज होता है लेबर उसको एक्टिवली मैनेज करेंगे। थर्ड स्टेज को मैनेज करने के लिए आपने ऑक्सीटोसिन करना होता है, यूट्राइन मसाज करनी होती है, कॉर्ट्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। फीमेल विद द प्लेसेंटा प्रीविया had the severe bleeding, but is the most likely outcome post delivery is the placenta previa है और severe bleeding है। मोस्ट लाइकली आउटकम पोस्ट डिलीवरी के बाद से क्या आएंगे? इसमें पेशेंट को जब ज्यादा ब्लीडिंग होती है तो शीहन सिंड्रोम हो जाता है, उसके अंदर क्या होगा? शीहन सिंड्रोम की PPH कॉम्प्लिकेशन आती है इसकी, इसमें पेशेंट को जो है वो एमेनोरिया या ओलिगोमेनोरिया हो सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पिट्यूटरी की वजह से। Okay, so 38-year-old gravid 9 para 8 woman presented at 38 weeks gestation, the labor diagnosed with a prolonged second stage of the labor, finally labor report 0.3 kg by the vacuum extraction। अब इसमें because of the risk of the PPH and hypovolemic shock है, बच्चों का following the best reliable indicator of the, अब इसमें पेशेंट शॉक में जा रहे हैं ना, तो सबसे पहले तो आप आइडिया लगाओगे कि उसका ब्लड लॉस कितना होगा। had the PPH of 1500 ml blood loss हो गया, but is the most accurate measure for the severe hemorrhage। severe hemorrhage में उसमें वही आपने एस्टिमेट लगाना होता है कि कितना ब्लड लॉस हुआ। लार्ज वॉल्यूम होगा तो 1000 ml 30 to 50% चांसेस होंगे। Okay, and the next one is the patient developed the DVT, had the C-section 10 days ago, want to give DVT हो गई है तो आप क्या देते हो पेशेंट को? C-section का 10 days तो फिर हाइपरटेंस दोगे। Okay, 30-year-old postpartum admitted for the right leg DVT, was starting on enoxaparin, then she developed sudden onset dyspnea and thoracic chest pain on the pulmonary and no इसमें I think so इसमें examination बताया हुआ है। हाँ, she was dyspneic, apprehensive, heart sound slow, loud P2, lungs were clear, on the auscultation vital sound normal है, signs ABG is normal है और cardiac rate कम है, high pH है, CT ऊपर आपको pulmonary artery के अंदर thrombus मिला है, which of the following is the most appropriate। इसमें आप याद रखो कि DVT के साथ एडमिट बना तो आप थेरेप्यूटिक डोज दोगे, आप उसे चेंज करेंगे, लेकिन अगर अनस्टेबल है तो फिर आपको इसमें थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें मोस्ट एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट क्या होगी? अब इसमें पहले एनोक्सिपेरिन दे रहे हो, ठीक है, और उसको डिस्नी आ गई सब तो आप उसी को ही कंटिन्यू करोगे। ओके, बट अगर पेशेंट जो हेमोडायनामिकली अनस्टेबल होता है तो फिर आपने क्या करनी होती है? थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी पे जाती हो। नॉर्मल डिलीवरी शी डिड एपिजोटमी, द डेवलप्ड पेरिनियल कलेक्शन 503 व्हिच वाज द लोएस्ट एंड द पेनफुल, व्हाट इज द ट्रीटमेंट? अब इसमें एपिजोटमी पेरिनियल कलेक्शन की तो इसका मतलब है कि वजाना हेमाटोमा बन गया, ठीक है, एंड इट्स वेरी पेनफुल। तो इसमें आपने इसको फिर जब हेमाटोमा होगा तो फिर आप उसको सर्जिकली इवैक्यूएट करते हो, उसको आप राइट से याद रख सकते हो, रेस्ट आइस कंप्रेशन एंड डाइलेशन। पेशेंट आफ्टर द एसपीडी फाउंड द प्लेसेंटा फेल टू डिलीवर एंड कैन नॉट एक्सट्रैक्ट, द पेशेंट रिफ्यूज्ड हिस्टेक्टमी, इट वाज मैनेज्ड बाय लाइगेटिंग द प्लेसेंटा एंड स्टार्टेड ऑन द मीथोट्रिक्स, व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस कॉज? अब इसमें प्लेसेंटा फेल टू डिलीवर, उसे एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, पेशेंट रिफ्यूज्ड हिस्टेक्टमी, आपने लाइगेट कर दिया और मीथोट्रिक्स, इसकी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होगी? पेशेंट को ब्लीडिंग स्टार्ट और फिर सेप्सिस के चांसेस भी हो जाते हैं डीआईसी की तरफ। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क।